So good afternoon everyone and welcome. I welcome each one of you, people joining the session. And in this session, we have the special guest, Mr. Shivang Rastogi. I really congratulate him. He has got success in UPSC 2022 exam with the commerce optional. And his background is very simple, just like many toppers and many people joining this session. He has completed his BCom from Delhi University and he has completed his MCom as well. And he has his own share of struggles which he will share with you. And you can ask your questions, whatever questions you have about your preparation, about commerce optional, about his journey, or whatever questions you have, okay? He will deal with all your questions patiently. He will discuss everything. Meanwhile, whatever questions you have, you can share in the chat box. He will look at it later on. And I will also be there in the session. I will also join in the last again if you have any further questions about commerce optional, about your book list, timetable, and he will also look at the doubts, okay? So our purpose of this session is that whatever questions, whatever queries you have regarding the commerce optional, especially this session is focused on the freshers. Especially इस session में हम लोग freshers पे focus कर रहे हैं. If you are preparing for 2023, for you people, we will have a separate session. Okay, we will have a separate session, or we will make a small video and we'll share with you. So if you are preparing for 2024, 25, 26, then this session is for you. If you are preparing for 2023, it is your choice whether you want to join this session, because it will be our long session and we will have a separate session for 23 as well, okay? So handing over to Shivang, and I really congratulate you. So good evening everyone. So I am Shivang Rastogi. Today I will be discussing with you guys my journey of UPSC in a very short span of time. Thereafter, I will be discussing primarily the commerce-related issues which are there in your mind, and majorly I will be focusing on the people who are preparing for the next attempt, that is 2024, and from there onwards. So I will tell you how you have to prepare commerce optional. Apart from it, I will discuss the various myths which are associated with the commerce optional, despite it being a good optional, and especially for the people who are from the commerce background. So I will be discussing the various myths which are associated and how you can excel your potential and unleash your potential in order to score good marks in the optional. So let's start. So a very brief about me. I have done my schooling from Sambhal district of Uttar Pradesh. From there I am born and brought up. Thereafter I moved to Sri Venkateshwar College, University of Delhi. I have done my bachelor's in commerce from therein. And after that, I have also done MCom from Open University. The reason being, I was pursuing UPSC. So I thought it is better for me not to have an academic gap. So I pursued that also. So technically, the base of my commerce is just the graduation that I have done. Uske baad, I will be bilingual from here onwards, so that the people, all the category of people can understand it better. So yeah, my score is 260 this time. It is around 126 and 134. The reason, I will tell you a story about it. Since my graduation, I was preparing for the UPSC. This is my 4th attempt. And in the first attempt, I was not able to clear even prelims. In the next subsequent attempts, I have written mains. In the second attempt and the third attempts, and in this final attempt, I have appeared in the interview and cleared it. So this is about me. मेरी जर्नी बहुत कॉम्प्लेक्स रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी इवेंचुअलीज हो जाती हैं, अनसर्टेनिटीज़ हो जाती हैं आप में, तो कभी कभी पढ़ाई भी सफ़र हो जाती है. सो यही है, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद रिगार्डिंग टू द कॉमर्स ऑप्शनल दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस है. सो लेट्स स्टार्ट. सो या, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू prepare the commerce optional. And firstly, I would like to tell you one important thing: why you should prepare from the commerce optional. That question must come in your mind when you are choosing your optional, because what happens in the journey of UPSC,
हम लोग बहुत सारे ऑप्शनल के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला ऑप्शनल लेना चाहिए या ये वाला लेना चाहिए, बेस्ड ऑन वेरियस मिथ्स, स्टोरीज या फिर एक परसेप्शन के बेसिस पे। वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो हमें जिस चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए फ्रॉम द डेटा परस्पेक्टिव रादर देन द परसेप्शन विच इज़ गोइंग इन द मार्केट। हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में कभी किसी सब्जेक्ट से टॉपर आ गया, कभी किसी सब्जेक्ट से टॉपर आ गया, कोई सब्जेक्ट छोटा है, कोई इजी टू अंडरस्टैंड है, ये सारे हम चीज़ों में फंस जाते हैं। रादर देन गोइंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ एप्टीट्यूड यू हैव बिल्ड थ्रू आउट योर करियर। सो वी गाइज आर मेच्योर पीपल, सो हमने ये देखना चाहिए 20-25 साल तक हमने कौन सा एप्टीट्यूड बिल्ड करा है, हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए। दिस इज़ माई ओपिनियन। रीज़न वाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि वॉट हैपन्स, सारे ऑप्शनल्स में नंबर आते हैं, सारे ऑप्शनल से लोग सेलेक्ट होते हैं, और सारे ऑप्शनल में नंबर कम भी आते हैं, और बहुत सारे ऑप्शनल से लोग सेलेक्ट नहीं भी होते हैं। सो इट इज़ जस्ट ए मिथ विच इज़ प्रिवेलिंग इन द मार्केट। दूसरी बात व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इफ़ यू लुक एट द ऑफिशियल डेटा विच इज़ पब्लिश बाय यूपीएससी, तो यूपीएससी ने डेटा पब्लिश करा है कि ऑप्शनल के बेसिस पे कि किस ऑप्शनल में कितना परसेंटेज लोग सेलेक्ट होते हैं। सो इफ़ वी लुक एट द मेजर ऑप्शनल्स, जैसे हमारा कॉमर्स ऑप्शन हो गया, तो कॉमर्स ऑप्शनल में लगभग हर साल अगर आप देखें 4-5 सालों में, तो 11 to 12% पासिंग परसेंटेज है, एंड इट इज़ अमंग द हाइएस्ट अक्रॉस डिफरेंट ऑप्शनल्स। आप कॉमर्स से रिलेटेड अगर आप इफ़ यू लुक एट द ऑप्शनल्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज़, जैसे आपका सोशो हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आपका PSIR हो गया, या फिर आपका पबएड हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इन सारे ऑप्शनल में 6 to 8% है पासिंग परसेंटेज। व्हाट दिस परसेंटेज इम्प्लाइज, अगर आपके 100 लोग मेंस में अपीयर होते हैं, तो कितने लोग फाइनली सेलेक्ट होते हैं? अगर आपके 100 लोग मेंस में अपीयर होते हैं आउट ऑफ 10,000 और 15,000 डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज एवरी ईयर, उसके बेसिस पे फाइनल लोग कितने सेलेक्ट होते हैं। सो वो देखा जाए तो कॉमर्स ऑप्शनल का पासिंग परसेंटेज अच्छा है, बट हमें मार्केट में परसेप्शन क्यों नहीं बिल्ड हो पाता? द रीज़न बीइंग कॉमर्स ऑप्शनल कम लोग लेते हैं, और वो कम क्यों लोग क्यों लेते हैं? बिकॉज इट्स ए टेक्निकल ऑप्शनल। टेक्निकल ऑप्शनल के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है कि द पर्सन हु हैव रेड कॉमर्स इन हिज ग्रेजुएशन या फिर उससे पहले, ओनली दीज पीपल कैन टेक दैट ऑप्शनल। इफ समवन इज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या आर्ट से है, या समवन इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो दे कांट टेक दिस ऑप्शनल। दैट इज़ वाई इट इज़ हम लोग ऐसा परसीव करते हैं कि ये ऑप्शनल इतना अच्छा नहीं है, बट द रिजल्ट इन द डेटा शोज द क्वाइट अपोजिट। एंड बिलीव मी, आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल from this optional, the people who got selected this year and in the last years also, they have performed very decently from this optional, क्योंकि इसमें I will tell you the qualities of this optional which will provoke you, which will encourage you to take that optional. Fine. So this is about the basic thing which I want to tell you in the initial phase of this lecture, क्योंकि आपके जो मन में preconceived notion है वो निकलने पहले ज़रूरी है, then only you will have the conviction to take such optionals. Fine. Then we have to discuss who should take that commerce optional. Then the point is, who should take commerce? अब सिंपल सा लॉजिक है, the people from commerce background should take this optional, but इसको further segregate करते हैं. It can be said that the people who are just graduated from this optional, just graduated मतलब if you have passed BCom ऑनर्स हो गया, MCom हो गया आपका, या फिर BBA, या फिर इस तरीके के कोर्स हो गए जिसमें आपने दो चीज़ पढ़ी हो. लेट मी टेल यू, कॉमर्स ऑप्शनल में दो चीज़ हैं. वन इज़ अकाउंटिंग वाला पार्ट पेपर 1 में जो है, सेकेंड इज़ मैनेजमेंट वाला पार्ट. सो इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू द पर्सन हु आर परसुइंग बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. गुड फॉर दोज हु आर परसुइंग हायर एजुकेशन या फिर मास्टर्स करा है, जैसे MCom किया है किसी ने,
या फिर MBA किया है. आई विल टेल यू, आई विल क्लैरिफाई दिस डाउट कि MBA लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है. देयर इज ए फ्रेंड ऑफ माइन इन द लास्ट ईयर जिन्होंने MBA करने के बाद MBA फाइनेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया था कॉमर्स ऑप्शनल में. सो आई विल टेल अबाउट दिस. देन प्रोफेशनल्स. Professionals constitute a very intelligent lot of people who take commerce optional. और इन प्रोफेशनल्स में कौन आएंगे आप वो देखिए. प्रोफेशनल्स में सिंपल आएंगे आपके CAs, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसे आप CMA बोलते हैं. इसके अलावा इवन इफ यू हैव परस्यूज CA टिल द इंटरमीडिएट स्टेज या फिर CA इंटर तक किया है, इवन देन दिस ऑप्शनल इज़ वेरी गुड फॉर यू. क्योंकि जो चीज़ आप CA के इंटर में जितने एग्जाम्स हैं ना, जो आप 8 पेपर लिखते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें आपकी पेपर 1 में कवर हो जाती हैं. सो ओवरलैपिंग बहुत है. वो वाला आप जो ICI का स्टडी मटेरियल है, यू कैन ऑल्सो टेक दैट स्टडी मटेरियल. सो फॉर दीज पीपल इट इज़ वेरी गोल्डन ऑप्शनल. अब इसका देखते हैं रीज़न क्या है. रीज़न सिंपल सा ये है, इस ऑप्शनल में ना आई वुड से, इफ़ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 50 से 60% चीज़ें के कंटेंट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो इफ़ यू हैव परस्यूड BCom, MCom या फिर आप प्रोफेशनल हो. पेपर 1 में आपको मैनेजमेंट पढ़ा होगा, पेपर 1 में आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, सबने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है सिंस क्लास 12th. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है वो आपने क्लास 12th के बोर्ड्स में भी करके आए हो. उसके बाद आप आगे जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन या फिर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये सारी चीज़ें आप ग्रेजुएशन के किसी न किसी ईयर में ज़रूर पढ़ते हो. आई हैव नॉट मेट ए सिंगल पर्सन जिसने कि ये सारी चीज़ें ना पढ़ी हो अपनी ग्रेजुएशन में. सो दीज थिंग्स प्रोवाइड ए एज टू यू गाइज, जो कि आप लोग इस ऑप्शनल को परस्यू कर सकते हो. सिंपल सा तरीका है कि आपने वो चीज़ पढ़ रखी है, बट वो आपने एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रखी है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. यहाँ पे क्या है, आपको एक UPSC के थ्रू, UPSC का जो एग्ज़ाम होता है उस पैटर्न के बेसिस पे चीज़ें पढ़नी है. सो डैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप उसको चैनलाइज तरीके से पढ़ेंगे. सेम सोर्स रहेगा, सेम स्ट्रेटजी रहेगी जो आपने यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ी है, बट आपको थोड़ा सा टैक्टिकल शिफ्ट करना पड़ेगा, टैक्टिकल मनूवरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आपके कुछ डिफरेंट लेंथ के आते हैं, डिफरेंट मार्क्स के आते हैं. यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं. ठीक है. Yes, so this is about it. Who should take this commerce optional? So it is very good for these people. Now I would like to tell you जो BCom या फिर MCom या MBA वाले लोग हैं, इनके लिए कैसे बेनिफिट है. CA वाले लोग सोचते हैं कि हमने केवल अकाउंटिंग वाला पार्ट पढ़ा है जो कि पेपर 1 में है, और प्रोफेशनल्स या फिर जो BCom वाले लोग हैं ये सोचते हैं केवल हमने मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है जो कि पेपर 2 में है. बट ये आपने सिलेबस देखने से पहले सोच रखा है. इफ़ यू लुक एट द सिलेबस वेरी केयरफुली यू विल नो कि जो BCom वाले लोग हैं, MCom वाले लोग हैं, उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ कुछ पार्ट ज़रूर पढ़े हैं. यू हैव रेड मैनेजमेंट इन योर कॉलेज, यू हैव रेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. स्पेसिफिकली शायद आपने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी या बिहेवियर ना पढ़ा हो, बट आपने ब्रॉड चीज़ें ज़रूर पढ़ी हैं. हेनरी फॉल के प्रिंसिपल हैं या FW टेलर की चीज़ें हैं, वो आपने ज़रूर पढ़ी है. सो डैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू हियर इन. ठीक है. सो आपकी ये सारी चीज़ें, और MBA वाले लोगों ने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो शायद आपने फाइनेंस में किया हो या फिर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया हो, तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू हियर इन. फाइन. सो अब आपको आई होप यू गाइज नो कि आपका कौन सा किन किन लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. देन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द फ्यू मिथ्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस ऑप्शनल. देखो, सिंपल से मिथ्स हैं जो कि मार्केट में प्रेवलेंट हैं, जो कि एज ए एस्पिरेंट आपको भी आ जा रहे होंगे, और 2-3-4 साल पहले मुझे भी ये सारे मिथ्स आए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी बहुत ज़्यादा लाजमी है. रीज़न बीइंग, अब देखिए मिथ्स क्या होते हैं. पहले, टू वास्ट ऑप्शनल, बहुत बड़ा है, लेंदी है, सोर्सेस की कमी है, या फिर गाइडेंस नहीं है. दूसरा मिथ क्या होता है, डिफिकल्टी स्कोर मार्क्स. मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं.
ये दो जनरली मिस रहते हैं, और रिवीजन का बहुत ज़्यादा इशू है, रिवीजन या फिर कंसोलिडेशन। ये सारे आपके ब्रॉडली मिथ हैं। अगर आपका कोई और भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी टेकिंग दिस डाउट्स आफ्टरवर्ड्स। तो सबसे बड़ा जो मिथ है कि बहुत बड़ा ऑप्शनल है। देखो, बड़ा आपको लग रहा है कि 10 सब्जेक्ट हैं, बट आपको प्रायोरिटाइजेशन करना है सारे सब्जेक्ट्स का, और आपको ये समझना है कि कौन से एरियाज़ में से, कौन से सब्जेक्ट में से चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। इफ़ यू लुक एट द पेपर 1 एंड इफ यू आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडिटिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब आपको लगेगा ऑडिटिंग तो इतना पढ़ा है, सीए में भी आप लोग पढ़ते हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन में ही पढ़ा है, बट बिलीव मी ऑडिट के केवल 2 टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें। सो व्हाट इज़ रिलेवेंट फॉर यू इज़ जस्ट कंपनी ऑडिट्स एंड द ऑडिट ऑफ NGOs एंड दिस पब्लिक ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस। सो वो 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको, तो आपको पूरी सारी चीज़ नहीं पढ़नी है। आपको लगेगा इनकम टैक्स कितना बड़ा है, बट इनकम टैक्स का जो मेजर प्रोपोर्शन है, जो कि आपका PGBP की इनकम जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं, वो इसमें UPSC ज़्यादातर नहीं पूछता है। सो वहाँ से वो चीज़ कम हो जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 4-5 टॉपिक्स हैं बस। सो जितना बड़ा आपको सिलेबस दिख रहा है वो एज सच टॉपिक मतलब सब्जेक्ट बड़े हैं, बट UPSC ने प्री डिटरमाइन कर रहा है बहुत अच्छे से सिलेबस। सो व्हाट यू कैन डू is just to read the bullets which is given in the syllabus very sincerely, then you will be able to understand कि syllabus है कितना एक्चुअल में। उसके बाद look at the previous year questions, then you will understand कि difficulty level questions का कितना है, whether it is just a standard level or it is the higher order, या फिर बहुत difficult question है या फिर बहुत आसान question है, वो आपको जब समझ में आएगा। एक और मिथ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड, पेपर 1 में पूरा न्यूमेरिकल होगा एंड वी आर नॉट गुड इन न्यूमेरिकल्स, सो हाउ टू मैनेज दैट, आई विल बी टेकिंग दैट सेपरेटली। फाइन। सो जो लेंथ आपको दिख रही है वो वैसे बहुत बड़ा है, बट अगेन थिंग्स आर वेरी सॉर्टेड इफ़ यू स्टडी दैम इन ए वेरी कंसोलिडेटेड वे, देन इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू मैनेज इट। फाइन। Then I have talked about the lengthiness of this paper. So it is not that lengthy. Despite that, it's a good optional. Vast है but manageable है. It is manageable. It is और सबसे बड़ी बात है, वास्ट कितना भी हो, बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं। If I ask you about the journal entries, जो कि कंपनीज की इशू ऑफ शेयर्स में आप लोग करते हैं, तो वो आपने 12th क्लास में भी करी हैं। तो सिंपल सी वही एंट्रीज आपको यहाँ पूछी जा रही हैं। सो आई डोंट से कि वो आपको एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आप अपनी वही चीज़ें से थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज। इस ऑप्शनल के सोर्स क्या, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस सोर्सेज इट सेपरेटली, क्योंकि इट्स ए टॉपिक जो कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के कन्फ्यूज़न होगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सोर्स। देन वी विल टॉक अबाउट द सोर्स एंड गाइडेंस सेपरेटली, जो कि मेरे को इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। देन इट्स बीइंग सेड कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स। देखो जैसे मैंने पहले भी बताया, हर ऑप्शनल में मार्क्स आते हैं और हर ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते। सो इट इज़ हाउ यू परफॉर्म इन दिस ऑप्शनल दैट विल डिटरमाइन योर मार्क्स रादर देन द ऑप्शनल इटसेल्फ। आप अगर ऑप्शनल को अच्छे से मैनेज करोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक, तो लो के मार्क्स आए हैं, देयर आर टॉपर्स इन द प्रीवियस ईयर्स जिनके मार्क्स 300 प्लस भी आए हैं। सो इट इज़ नॉट एज सच कि मार्क्स नहीं आते। अब मार्क्स कम क्यों आते हैं, मेरे थोड़े से इस बार कम आ गए क्योंकि आई वॉज इल, मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई थी पेपर 1 से पहले। सो आई वॉज नॉट इन माई फुल कैपेसिटी और फुल मेंटल स्टेट टू राइट ए वेरी डिसेंट एग्जाम। डिस्पाइट दैट आई स्कोर्ड ए वेरी फेयर इनफ मार्क्स। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इवन आई नो व्हाट आर माई शॉर्ट कमिंग्स, even then on the basis of that I am telling you the things which you can rectify. I know my shortcomings, that is why I got average marks या फिर above average marks, क्योंकि nowadays getting 250 plus score in optional is a very decent task. Fine, तो वही चीज़ आपको मैनेज करनी है। Then the point is with regard to revision and consolidation. देखो ऑप्शनल अगर वास्ट होता है या फिर ऑप्शनल बड़ा है, लेंदी है, तो मैटर क्या करता है कि आप उसको रिवाइज किस तरीके से करते हैं। सो रिवीजन के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ वेरियस जो कि इंस्टीट्यूट्स के नोट्स होते हैं और उसको आप शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपके लिए हैंडी हो जाएगी।
वो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं. वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन सेपरेटली. ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा डाउट है कि न्यूमेरिकल्स को कैसे मैनेज करें. अब इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. देखो, Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. पेपर 1 का अगर आप टॉपिक्स देखोगे, सब्जेक्ट देखोगे, तो आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं इसमें. बट बिलीव मी, इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा पेपर 1 इज़ 50-50%. 50% न्यूमेरिकल है और 50% आपका थ्योरी पोर्शन है. क्योंकि देखो, FM में आपकी थ्योरी आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड, आपका ऑडिटिंग इज़ कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड. तो 3 टॉपिक्स तो आपके थ्योरी बेस्ड हो गए. थोड़ा सा इनकम टैक्स, कॉस्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी हैं. न्यूमेरिकल सब में है, बट इन 3-4 चीज़ों में ज़्यादा है. अगेन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है और क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इफ़ यू हैव लुक एट द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो 5 आपको वो दे रखे होते हैं शॉर्ट नोट्स, 5 शॉर्ट नोट्स, एंड दीज आर कंपल्सरी क्वेश्चंस. व्हाट डज इट मीन्स कि 50 + 50 100 नंबर को आपको 100 मार्क्स. 100 मार्क्स की तो थ्योरी है ही पेपर 1 में. देन यू हैव टू लुक एट कि बाकी आपके अब बचे 150 मार्क्स. देन इट इज़ अप टू योर डिस्क्रिप्शन हाउ मच थ्योरी यू वांट टू अटेम्प्ट, क्योंकि देयर विल बी चॉइसेस अमंग द क्वेश्चन. द पीपल हु आर फ्रॉम प्रोफेशनल बैकग्राउंड लाइक CA, CS, they preferred कि more theory attempt करी जाए. But people from let's say I am from BCom, so I attempt theory more than the numericals. But you should have a balance. दोनों चीज़ में कर सकते हो depending कि आपकी कौन सी चीज़ strong है. You need to strengthen your strong areas. Strong areas पे focus करना है आपको. और again एक caveat भी है यहाँ पे, the people from professional background जो CA हैं या फिर CS हैं, उनको भी कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए कि पेपर 1 कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है. देयर आर इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ थ्योरी इन दैट पेपर ऑल्सो, सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट थ्योरी ऑफ पेपर 1. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, अदरवाइज यू हैव टू फेस द रेपरकेशन ऑफ दैट. ठीक है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि थ्योरी भी है. पेपर 1 इज़ ए मिक्स ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल. Theory plus practicals and numericals are there. It is, I believe कि it's a combination of 50-50%. However, it is up to you how much theory you wants to attempt. क्योंकि 100 नंबर की theory at the end of the day you have to attempt it. बाकी जितनी करनी है वो तुम्हारा मन है. But again, you cannot neglect numerical altogether. वो भी नहीं होगा. तो उतना तो हम लोग पढ़े ही हैं पहले से. So we can easily manage it. With just rigorous practice, थोड़ी सी practice करनी पड़ेगी, and then you will be able to manage that. Now I will be telling you about the strategy, my strategy and timetable. Then I will be discussing the sources and book list. So So I have given substantial amount of time in this optional, so I can tell you my strategy. My strategy is very simple. Simple in the sense कि I have to look, मतलब मैं सोर्स बनाता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है,
You have to write some test series. And you have to read basic books and notes. What are these basic notes? These basic books are the books that you have referred while preparing for commerce in the graduation itself. जो आप ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़ते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. आई विल टेल यू कैसे यूज़ कर सकते हैं इन द बुक लिस्ट कॉलम इटसेल्फ, एंड देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ नोट्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट्स. इंस्टीट्यूट्स के नोट्स से बेनिफिट क्या होगा, डेट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द अपकमिंग स्लाइड. उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो सिंपल सा फ़ायदा है. Institutes have put a lot of efforts in doing their research. So you should take the help of their research in order to ensure कि आपका value addition हो पाए आंसर में. और कॉमर्स में एक थोड़ा सा इशू ये है कि इट्स ए वेरी स्कैटर्ड ऑप्शनल. जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ओपन एंडेड वर्ड है, क्वेश्चन उसकी डेप्थ में से आ सकता है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू read all the books, it is very difficult for you to consolidate the stuff. So institutions have put a tremendous amount of time and effort to consolidate their things based on previous year question and their research. So you should take the benefit out of that. So I have discussed with sir, I have seen the notes and I have read also. वैल्यू एडिशन के लिए डायनामिक आईएएस के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें, क्योंकि दे हैव पुट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन डूइंग रिसर्च. और सबसे अच्छी बात है वैल्यू एडिशन है. यू विल हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस ऑफ द ऑथेंटिक ऑथर्स. तो उससे क्या होगा, आपको वैल्यू एडिशन, अगर आप आई विल टेल यू कि अगर आप किसी डेफिनेशन लिखते हैं, कोई डेफिनेशन लिखते हैं और उसके आगे इसको लिख देते हैं इसका ऑथर कौन है, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. कैसे, ये आपकी डेफिनेशन को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है. सो आई हैव सीन कि बहुत सारी डेफिनेशन की आपके ऑथर्स के दे रखा है और बहुत अच्छे से दे रखा है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड थिंग्स एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इवन बाय सेल्फ स्टडी. फाइन. सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रेटजी. और उसके साथ साथ मेरा ये था कि मैं एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम ऑप्शनल को देता था. ग्रेजुएशन से मेरा थोड़ा सा बेस बना हुआ था, उसको मैंने बिल्टअप करा है यूपीएससी के दौरान. आई हैव नॉट रेड थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच. थोड़ा सा पेपर 2 में बहुत सारी चीज़ें स्क्रैच से पढ़नी पड़ी, थोड़े से टॉपिक्स पेपर 1 के भी स्क्रैच से पढ़ने पड़े, क्योंकि थोड़ा सा सब चीज़ें नहीं पढ़ते हम ग्रेजुएशन में अच्छे से, बट फिर उसके बाद बिल्ट ऑन हो जाता है आपका बेस. फाइन. और टाइम टेबल का बताएं तो टाइम टेबल आई हैव मेड ए वेरी वेरी simple and straightforward routine, and I would suggest you guys to follow that routine. I will also give you customized things with regarding to that. So timetable का क्या फंडा है, देखो 20% plus 40% plus 40%. We are commerce students, so we must understand how to make sure things in a quantifiable terms. 20% टाइम अगर पूरे दिन का मुझे देना है करंट अफेयर्स में, 40% टाइम देना है मेरे को पूरे दिन का अपना जीएस में, और 40% टाइम देना है मुझे अपने पूरे दिन का ऑप्शनल में. सिंपल फंडा है. लेट्स से इफ यू आर स्टडिंग फॉर 10 hours, 2 hours फॉर करंट अफेयर्स, 1 hour फॉर न्यूज़पेपर एंड 1 hour फॉर अदर करंट अफेयर्स. 40% मीन्स अनदर 4 hours फॉर आपका जीएस में जीएस 1 2 3 4. देन 40% टाइम इज़ फॉर ऑप्शनल, मतलब 4 घंटे ऑप्शनल के, 10 घंटे में 2 घंटे, 4 घंटे और 4 घंटे. अगर आप ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं, इफ़ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप ऐसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं. प्रोपोर्शन यही रहना चाहिए एट द एंड ऑफ वीक. यू कैन स्टडी फॉर लेट्स से 6 7 8 hours फॉर ऑप्शनल. अगले दिन आप ऑप्शनल मत पढ़ो, ऑल्टरनेट डे पढ़ लो, या फिर किसी हफ्ते में 3 दिन पढ़ लो. या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 6 घंटे एक दिन ऑप्शनल पढ़ लिया, 2 घंटे जीएस पढ़ ली, 6 घंटे अगले दिन आपने जीएस पढ़ लिया, 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ ली, डिपेंडिंग कि आपको किस मोड में आसानी से समझ में आता है और आप रिलैक्स रह के पढ़ पाते हो. इट डिपेंड्स, क्योंकि हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर आदमी का अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग होता है, और हर आदमी का कैप्चरिंग पावर भी अलग होती है. सो इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. बट रिमेंबर दिस थिंग, कीप थिंग्स वेरी सिंपल. यू शुड नॉट गिव ओवर, मतलब ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं देना है ऑप्शनल को, और ज़रूरत से कम टाइम भी नहीं देना है. यू हैव टू गिव प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम. जस्ट प्रोपोर्शनेट मतलब जितना डिमांड करता है सब्जेक्ट उतना देना है. एंड आई थिंक
फॉर एवरी ऑप्शनल दिस माइट सीम्स वैलिड, मतलब हर ऑप्शनल में लगभग ये चीज़ तो चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है, कुछ ऑप्शनल में फाइन। सो दिस इज अबाउट द टाइम टेबल विच यू कैन परस्यू। मेरा भी लगभग ऐसे ही रहता था। ओके देन अगेन दिस इज़ ए वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मैं भी सोचता था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। 10 सब्जेक्ट है कॉमर्स में, विच सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद। अगेन इफ़ यू आर ए बीकॉम ग्रेड जैसे मैं था, तो आपने जो बीकॉम में सब्जेक्ट पढ़े हैं आप उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। बीकॉम में लेट से आपने 3rd ईयर में या फिर 2nd ईयर में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है या फिर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, रीड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैसे? द बुक्स दैट यू आर रेफरिंग इन द यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, सबकी बुक लगभग ठीक है, अच्छी ही है, जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो होती है यूनिवर्सिटी में। रीड फ्रॉम दैट बुक, अब एक बार अंडरस्टैंड करिए, देन लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, take the help of value additions which are being provided by coaching institutes. See, it's not, you should not shy away from taking the help of different institutes. Reason, you are an aspirant, your only goal is to get a benefit out of the things which are there, so आप उससे help लो। एंड डायडेमी IAS ने काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चंस बनाए हैं, तो यू कैन टेक हेल्प। 10 बुक से अच्छा पढ़ने से अच्छा है एक इंस्टीट्यूट के नोट पढ़ लो जिसमें 10 तरीके के क्वेश्चन मिल जाएं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फाइन, तो समझ में आया किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। अगर आप मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, MBA वगैरह कर रखा है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से स्टार्ट कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, किसी भी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो हर किसी के मन में डाउट रहता है और रहना भी चाहिए, द बिग वर्ड कोचिंग। कोचिंग करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग फॉर वन एंड ऑल, मतलब सबके लिए एक बार में। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ पा रहे हैं, इफ़ यू हैव द सोर्स, देन इट इज़ वेरी गुड। इफ़ यू नीड गाइडेंस फ्रॉम समवन, देन यू कैन एनी टाइम टेक कोचिंग। रीजन बीइंग, there are professional persons, professional teachers, professional coaches, professional mentors who are there to guide you, है ना। उनका काम ही है आपको समझाना, आपका सिलेक्शन कराना। सो व्हाई आर यू शाइंग अवे फ्रॉम टेकिंग दैट। दूसरी चीज़, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मतलब सेल्फ स्टडी, खुद के सोर्स हैं, खुद के नोट्स हैं, बहुत अच्छा है। मैं भी ज़्यादातर ऐसे ही करता था। बट सुनो एक बात, यू कैन ऑलवेज टेक सम गुड कोचिंग टेस्ट सीरीज। डेली प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना आप फ्रीक्वेंट आप एक शेड्यूल वे में टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपने जो खुद पढ़ा है आपको पता चलेगा कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा आपको रिटेन रह रहा है, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। सो दैट यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। दूसरा बेनिफिट टेस्ट सीरीज का, वैल्यू एडिशन चीज़ें मिलेंगी। लेट्स से यू हैव रेड फ्रॉम एक्स सोर्स, यू हैव रेड फ्रॉम ए सोर्स, आपने 10 चीज़ें पढ़, 2-4 पॉइंट आपको पता है। टेस्ट सीरीज के आपके सॉल्यूशन में अगर 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं विद एग्जाम्पल, देन यू कैन पुट ऑल दिस थिंग इन योर नोट्स। 2 चीज़ आपकी नोट्स में बढ़ गई तो आपका वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। थ्रू दिस वे यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं आप, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स से हेल्प ले सकते हैं। अगेन, rather than reading 10 books, because we are lacking in time, we have to read 5 GS subjects also, 4 GS plus 1 essay। उसके बाद कॉमर्स भी पढ़ना है, इसके अंदर भी सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या कर सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स की हेल्प लो। अब देखिए एक बात सुनो, हमारा ऑडिटिंग पेपर है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पेपर 1 में, या फिर पेपर 2 में इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, इनकी कोई बहुत अच्छा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जो कि UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बना हो। मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं है। कहाँ से पढ़ेंगे ऑडिटिंग? इफ़ यू रीड फ्रॉम द थिंग्स डेट यू हैव ऑलरेडी रेड, लेट्स से इन BCom, या फिर आपने CA में पढ़ा है ऑडिटिंग। CA में ऑडिटिंग का स्कोप बहुत वाइड है, BCom में थोड़ा सा नैरो पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है।
यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स लिखे गए होते हैं, इसलिए वो चीज़ आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी. सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम डैट. दिस इज माई पर्सनल टेक. यू कैन, इट इज़ ऑलवेज योर डिसीजन. यू कैन कंपेयर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट एंड टेक डिसीजन वाइजली. फाइन. सो दिस इज माई ओपिनियन, और ये चीज़ आपको हेल्प क्रिएट करेगी इन द लॉन्ग रन. देन वो द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की सेल्फ स्टडी वाला आपका शेड्यूल कैसे रहना चाहिए. सेल्फ स्टडी से कॉमर्स कैसे पढ़ी जा सकती है. देखो, सेल्फ स्टडी से 2-3 तरीके होते हैं. आप अपना जो आपका बेसिक बुक है आपने ग्रेजुएशन में फॉलो करी है, आप वो फॉलो कर सकते हैं. जैसे एफएम की आरपी रुस्तगी होती है, टीएन छाबड़ा होती है, या फिर सीबी गुप्ता होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की. और आपकी जो जे.आर. मोंगा आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होती है. सो ये सारी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो. टैक्स की ग्रीस आहूजा बुक होती है, तो वो फॉलो कर सकते हो. इवन इफ़ यू आर नॉट रेड दीज थिंग्स, जो भी आपने ग्रेजुएशन में बुक फॉलो करी है वो आप पढ़ सकते हो. फॉर सीए पीपल इट्स यू हैव ए वेरी गुड सोर्स. ICI के मॉड्यूल होते हैं आपके इंटर में, यू कैन रेफर टू दोज मॉड्यूल्स. फाइन. सो आप उससे पढ़ सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है, आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं. फर्स्ट हो गया आपका ग्रेजुएशन बुक्स. दूसरा तरीका हो गया आपका you can take the help of coaching institutes notes. Then you can follow some advanced book. देखो, एडवांस बुक वो होती हैं जो कि आपने ग्रेजुएशन में फॉलो तो करी हैं, बट थोड़ा सा पेपर उसकी डिमांड उससे अलग है. जैसे एसपी रॉबिन्स है एक बुक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आरपी रुस्तगी के अलावा भी बुक्स आती हैं. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दोज बुक्स, जिससे आप या तो एग्जाम्पल्स ले सको, कुछ टॉपिक्स समझ सको, या फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फ्रॉम दोज बुक्स. दूसरी चीज़ सबसे अच्छी भी जो रहेगी, आप एक बार अपनी बुक्स के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को सप्लीमेंट कर लो. सप्लीमेंट से क्या फ़ायदा होगा, जो कि चीज़ आपने नहीं पढ़ी है या कि जो कि चीज़ आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स में मिसिंग है, सो वो आप यहाँ से आपकी सप्लीमेंट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कितना रिलेवेंट पढ़ना है. क्योंकि दीज नोट्स आर नॉट मेड फ्रॉम फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, दे आर प्राइमरली मेड फॉर द पर्सपेक्टिव कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो. ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो. ग्रेजुएशन की बुक में थोड़ी सी समस्या ये रहती है कि देखो, जैसे एफएम की बुक है आरपी रुस्तगी, उसमें क्या है 2-4 चैप्टर आपके एक्स्ट्रा होंगे, कुछ चैप्टर्स आपके नहीं होंगे. तो आप में ना वो बहुत सारा आपको फिर मटेरियल आपका थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा एक बार में हो जाएगा. जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दो इट्स वेरी रिलेवेंट चैप्टर, बट इट इज़ नॉट बीन देयर इन द यूपीएससी एग्जाम. या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं, वो सारे चैप्टर यहाँ पे नहीं है, मतलब इस वाली बुक में नहीं है. वो सारे चैप्टर फिर आपको किसी और बुक से पढ़ने पड़ेंगे. सो अगेन थिंग्स बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और कंसोलिडेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कभी कभी. तो डेट इज़ वाई आई एम रेफरिंग कि एक बार इनको रेफ़र कर लेना. रेफ़र करने में कोई टाइम नहीं लगता, इट्स जस्ट ए वेरी मतलब फ्लो में चीज़ें हो जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ. सोर्सेज या फिर बुक लिस्ट. देखो, पेपर 1 है एंड देन यू हैव पेपर 2. पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट्स हैं ओटी, ओबी, एचआरएम एंड आईआर. आईआर का कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है नहीं जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव हो, सो यू हैव टू रिलाइड ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नोट्स. ओटी ओबी के लिए, इसके लिए आप एसपी रॉबिन्स की बुक फॉलो कर सकते हैं. फाइन. ओटी के लिए आप टीएन छाबड़ा फॉलो कर सकते हैं या फिर सीबी गुप्ता फॉलो कर सकते हैं. सिमिलर थिंग्स अप्लाइड फॉर एचआरएम, आप इसके लिए सीबी गुप्ता फॉलो कर सकते हैं. अगेन रिमेंबर कि थोड़ा सा लेवल एडवांस हो, ज़रूरत पड़े तो यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ गूगल. गूगल से हेल्प लीजिए.
इंटरनेट का अच्छे से यूज़ करिए इन ऑर्डर टू गेट गुड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की हेल्प आपको बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट मोर मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन। अगर आपके कॉर्पोरेट एग्जाम्पल होंगे, आपके गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्पल होंगे, स्पेशली इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो आपको मार्क्स ज़रूर ज़्यादा मिलेंगे। तो वो एग्जाम्पल्स कहाँ से आएंगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा खुद पे भी सर्च करेंगे। और देयर आर वेरी कंसोलिडेटेड नोट्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स, स्पेशली एकेडमी के अच्छे नोट्स हैं, तो आप नोट्स फॉलो कर सकते हो। क्योंकि नोट्स में क्या है कि 4 किताबों से पढ़ के नोट्स बनाए गए हैं रिसर्च करके, तो वो चीज़ आपको हेल्पफुल होगी यहाँ पे। देन यू हैव पेपर 1 में देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बहुत अच्छे नोट्स हैं नहीं, क्योंकि ये बहुत वाइड मतलब नोट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, बड़ी बुक होगी, एंड देन यू हैव टू उसको कम करना पड़ेगा। आपका FM बचता है, FM आपका अच्छा पार्ट 1 भी है अभी, पार्ट A एंड पार्ट B। FM में आप RP रुस्तगी फॉलो कर सकते हैं, इट्स ए वेरी गुड बुक। आप कोई और एडवांस लेवल की बुक भी फॉलो कर सकते हैं, बट आई थिंक वो जो एडवांस लेवल की बुक होती है वो थोड़ा MBA स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा होती हैं, वो थोड़ा लेंदी हो जाती हैं बुक्स। तो RP रुस्तगी इज़ वेरी कंसोलिडेटेड, क्रिस्प बुक, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन इज गिविंग, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ल्यूसिड लैंग्वेज लिखी गई है यहाँ पे। देन आपका फाइनल अकाउंट्स के लिए आप ग्रेजुएशन वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली जो आपकी JR मोंगा वाली बुक है। कॉस्ट के लिए आप MN मित्तल फॉलो कर सकते हैं। आप ऑडिट के लिए इट्स अगेन नॉट ए वेरी गुड बुक, क्योंकि ऑडिट बहुत स्कैटर्ड है और UPSC में 2 चीज़ें केवल 2 आपके टॉपिक्स दे रखे हैं। कॉस्ट के लिए आप MN मित्तल फॉलो कर सकते हैं। आप टैक्स के लिए गिरीश आहूजा फॉलो कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि टैक्स में PGBP वाला चैप्टर इज़ नॉट डेड इंपॉर्टेंट, तो उसको थोड़ा सा आराम से ही पढ़िएगा। टैक्स में ये ध्यान रखना कॉस्ट किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये रखना कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। नॉट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन डायरेक्ट टैक्स, देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट which you can analyze from the syllabus and from looking the previous year questions. So this is about the sources and book list. Now just to give you brief about the answer writing tips या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे आते हैं, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आंसर राइटिंग टिप्स क्या रख सकते हैं आप। हाउ टू राइट गुड आंसर्स, वो चीज़ें, या हाउ टू राइट आंसर्स डेट वी कैन डिस्कस सम टाइम एल्स, बट नाउ इज हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन एन आंसर। हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन ए पर्टिकुलर आंसर। देखो, मोर मार्क्स हो या फिर आंसर राइटिंग हो, सिंपल सा फंडा है इसमें, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब जो चीज़ सबको पता है, जो चीज़ ऑब्वियस है, वो आपको पता होनी चाहिए, पर उससे एक कदम ज़्यादा आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बढ़ी हो। कैसे होती है वैल्यू एडिशन? या तो आप किसी ऑथेंटिक सोर्स का रेफरेंस दीजिए कि किस ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन लिखिए बाय नोइंग द सोर्स। यू कैन यूज़ गुड कोट्स। कोई अच्छा सा कोट आपको पता है, स्पेशली इन द पेपर 2 आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन गेट गुड मार्क्स। आपको डेफिनेशन यू शुड हैव गुड डेटाज, या फिर एनेक्डोट आपको पता है, या फिर आपको कोई कॉर्पोरेट केस स्टडी पता है, देन यू विल गेट अगेन अच्छे मार्क्स की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है, ज़्यादातर कोई भी लाइन आप लिखें, कोई भी पॉइंट लिखें, उसको सब्सटेंशिएट करिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। If you are just writing the theoretical content, you won't get good marks. But if you are substantiating your theory with the example, with an example or with some case study, then you are going to get good marks, क्योंकि उससे examiner को impression पड़ जाएगा that you don't know the thing which is there in the book, but you have also applied your mind and you are a person who have applied knowledge rather than just the theoretical knowledge. So this is through this way you could get brownie points या फिर extra marks कैसे आते हैं।
आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रक्चर आंसर का पता होना चाहिए, जो कि हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, सिंपल सा है, इसको आपको आंसर राइटिंग में ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है। दूसरी बात, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। डायग्राम्स बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखे, नोट्स में दे रखे, वो बना सकते हैं, या फिर यू कैन यूज स्कीमेटिक्स इस तरीके से। ठीक है, या फिर आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, तो आप इस तरीके से सिंपल छोटा सा डायग्राम बना दो। Under centralization, there is a single person who is having control of lot of persons. This is called centralization. Decentralization के लिए you can again refer to again through this way you can create multiple chains, जिससे पता चल जाए कि ये डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्मेट है। तो इसे छोटे छोटे तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के योर आंसर लुक्स डिफरेंट, इट लुक्स कैची एंड यू विल गेट more marks. So this is how I try to inculcate things. Again, answer writing practice is very important in commerce optional, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी पेपर 1 और पेपर 2 तो ऑब्वियस है, बट पेपर 1 थोड़ा सा लेंदी आ जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेपर कंप्लीट कर पाएँ, एंड अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। मैं क्या करता था न्यूमेरिकल्स के लिए, जैसे वैसे तो मैं पढ़ाई पहले से ही कर लेता था, मतलब जो प्री से पहले है, बट जब मेंस का और प्री का बीच का टाइम होता था, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई पुट जस्ट 1 आवर और 1.5 आवर्स डेली। रोज का सुबह का 1-1.5 घंटा निकालना है, जिसमें मुझे केवल न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करनी है बस। सो आपको लगेगा रोज का 1.5 घंटा इट्स वेरी मच, बट आई विल टेल यू हाउ इट्स नॉट दैट मच, क्योंकि न्यूमेरिकल कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द पेपर 1। सो 50% पेपर 1 का मेरा हमेशा तैयार हो रहा है, 150 मार्क का या 100 मार्क का रोज के रोज, उसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो दैट इज़ नॉट ए, इट्स ए वेरी गुड कॉस्ट या फिर टाइम बेनिफिट एनालिसिस, इसका काफ़ी अच्छा है कि आप कितना टाइम पुट कर रहे हैं और कितना आपको रिजल्ट मिल रहा है। दैट इज़ वेरी गुड इन दैट केस। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फाइन, सो दीज आर द थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, जो मुझे डिस्कस करना था। नाउ द सेशन इज़ ओपन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can answer. I will also take the help of Rahul sir, so if you want to contribute to the queries, so we are going to address your queries. Fine, so if you have queries, you can just post it in the comment and I will be taking them. So Oshin, I have discussed the standard book with you, how to write answers for paper 2. I will just telling you. Sir, according to you, which portion of syllabus is scoring which has more weightage? Okay. Which portion is scoring? See, again, it depends on what type of aptitude you have built in your career. अगर आप CA हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए पेपर 1 इज स्कोरिंग। आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो विद यू हैव प्रैक्टिस, या फिर आपकी स्पीड अच्छी है, देन इट इज़ गुड फॉर यू। बट इफ़ यू आर ए पर्सन फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड या फिर BCom हो, देन पेपर 1 इज स्कोरिंग इवन देन, बट पेपर 2 इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग। आपकी अगर फ्लेयर है वो राइटिंग का, इफ़ यू नो द मैनेजमेंट कंसेप्ट, देन इट इज़ वेरी स्कोरिंग। एंड अगेन वही है जो आंसर राइटिंग में है, आपको डायग्राम्स का यूज़ करना है, आपको जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं डेट वी हैव डिस्कस इन द प्रायर स्लाइड, वो सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। लेट मी टेल यू अबाउट हाउ टू मेक नोट्स। देखो, आप जहाँ से भी कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ो, सो जस्ट रीड इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। दूसरी बार पढ़ो, उसको हाईलाइट कर लो थोड़ा सा। When you are reading it for a third time or fourth time, then you should try to make notes of it, क्योंकि इतनी ज़्यादा बार आप चीज़ नहीं पढ़ोगे। तो नोट्स कैसे बनाने हैं? सिंपल। मैं क्या करता था, मेरी एक हमेशा स्ट्रेटेजी रही है, इट इज़ वैलिड फॉर अक्रॉस GS एंड ऑप्शनल। जितना भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, वो ये याद रख के पढ़ो कि मुझे एग्ज़ाम से पहले, एक हफ्ते पहले या फिर एक रात पहले सारी चीज़ रिवाइज हो जानी चाहिए। सो इतने छोटे और क्रिस्प नोट बनाओ कि जो चीज़ आपकी रिवाइज हो पाए। तो क्या कर लेता था मैं, जैसे लेट से एक मैंने HRM ले लेते हैं, कोई HRM में कोई भी टॉपिक है, जैसे आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक। अगेन आई हैव पुट डेफिनेशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी यहाँ पे, उसके अंदर जो भी चीज़ है, कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, मेथड्स होते हैं, वो सारे लिख लिए, एक लाइन में लिख लिए या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए।
क्रिस्प पॉइंट हेडिंग के आप बना लो जिससे आपको चीज़ें रिकॉल करने में आसानी हो. सो आई हैव टू मेक नोट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज जस्ट 1 or 2 पेज, मतलब वो बोथ साइड. उससे अब मैं क्या करता, रिवाइज मेरा बहुत आसानी से हो जाता था, बहुत जल्दी, जिससे एग्जाम में आपको एकदम पॉइंट्स आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू राइट इट एट ए वेरी फास्ट स्पीड. इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं. और अगेन कोई आपका एग्जाम्पल आपको याद है तो यू कैन नॉट क्रिएट एग्जाम्पल इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू हैव टू नो इट बिफोर हैंड. तो आप इसको लिखो पहले से. आप एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे नीचे कहीं एग्जाम्पल लिख लिया, इसको हाईलाइट कर दिया डिफरेंट कलर से या स्टार मार्क बना दिया. इससे क्या होगा, एग्जाम से पहले आपको ये रिवाइज करके जाना है, तो वो आपको ठीक रहेगा. एंड यू आर सेइंग विच कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नोट्स आर गुड. देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स सबके ठीक हैं, बट आई प्रेफर्ड कि डायडेमी के अच्छे नोट्स है. द रीजन बिंग वेल रिसर्च हैं और वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा है. सो बेसिक चीज़ तो डिफरेंट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट अगेन जो आपको वैल्यू एडिशन या एग्जाम्पल डिफरेंट सॉर्ट्स के मिलेंगे, डेट इज़ रियली हेल्पफुल. यू कैन लुक एट एग्जाम्पल्स इन HRM की बुक में, या फिर और भी जो बुक्स हैं, OB है, OT है. इसमें एक तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं और दूसरी बात इसमें फ्लो चार्ट अच्छे हैं. फ्लो चार्ट मिलेंगे तो 1-2 नंबर यहाँ से फालतू मिलेगा. तीसरी चीज़ डेफिनेशन के साथ राइटर का नाम लिखा हुआ है, तो तीनों चीज़ आपको एक बार में मिलेंगी. उसको अंडरलाइन करोगे देन इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. हाउ टू अप्रोच 10 मार्क्स एंड 15 मार्क इन डिफरेंट वे. देखो 10 मार्क और 15 मार्कर में अप्रोच सेम रहती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. सिंपल सा फ़र्क ये है कि इसमें आपको 150 वर्ड में लिखना है, मतलब 2 पेज लिखने हैं. इसमें आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, 3 पेज लिखने हैं. क्या करना है कि जो आपका 10 मार्कर होगा, ज़्यादातर उन क्वेश्चन में आपकी 2 डायमेंशन कवर होंगी, है ना. तो आप उसमें उस तरीके से करना है. 15 मार्कर में आपकी 2-3 डायमेंशन कवर होंगी, तो उसको उस फॉर्म में करना है. अब देखो, आप शुरू में इंट्रोडक्शन लिखो 15-20% ऑफ द आंसर, देन यू हैव टू बॉडी को सेग्रीगेट करो. एक कोई प्राइमरी जो क्वेश्चन की डिमांड है वो, देन सेकेंडरी डिमांड, देन यू हैव टू कंक्लूड. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पेपर, दिस इज द फॉर्मेट फॉर 10 मार्कर. 15 मार्कर में ये थोड़ी सी चीज़ इलेबोरेटेड हो जाती है. 15 मार्कर में ज़्यादातर बॉडी के 3 पार्ट होते हैं. वर्ड लिमिट का फ़र्क पड़ जाता है, आपका कंटेंट की डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाती है आपके 15 मार्कर्स में, तो ये वेरी कर जाता है. इफ़ यू आर आस्किंग स्पेसिफिकली जो शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं, जो 10 मार्कर आपके आते हैं, जो शॉर्ट नोट की फॉर्म में होते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या है, एक आपको कीवर्ड दे दिया. फाइन, लेट से आपको दे दिया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इन पेपर 2 वाले में. सॉरी, सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपको दे दिया, तो यू हैव टू डिस्कस द 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ दैट कीवर्ड. 360 डिग्री कैसे करोगे, शॉर्ट नोट में. यू जस्ट हैव टू डिफाइन द डेफिनेशन व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, देन यू कैन टॉक अबाउट द फीचर्स, देन यू कैन टॉक अबाउट द यूटिलिटी ऑफ इट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे कैसे यूज़ होता है, एप्लीकेबिलिटी क्या होती है. छोटा छोटा करके आप डिफरेंट डायमेंशंस में अगर इसे खोल सकते हो, देन इट विल लुक मोर डाइवर्स एंड यू विल बी हैविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स. 10 मार्कर्स को जितना डाइवर्सिफाइड रखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही लिख दिया, मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस कम हो जाती है उसकी. फेयर इनफ. See, current affairs are important in order to have value addition in the commerce paper 2 especially. और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर की ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप इंटरव्यू दोगे, क्योंकि इकॉनमी एंड कॉमर्स आर वेरी ओवरलैपिंग इन द फेज ऑफ इंटरव्यू. सो कॉमर्स में यू कैन नॉट सेग्रीगेट कि ये इकॉनमी करंट अफेयर है, ये कॉमर्स की है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी. तो वहाँ पे फेज ऑफ इंटरव्यू यू कैन रेफर अनदर न्यूज़पेपर जो कि बिजनेस का होता है, तो आप इकोनॉमिक टाइम्स या फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ सकते हो. Meanwhile, for mains, I won't recommend you to read another newspaper because you are already having a less time. What you can do, जो कि ब्रॉड करंट अफेयर आ रही हैं, जो कि आप कहीं पे भी पढ़ लेते होगे, द हिंदू में पढ़ते होगे, इकॉनमी के पेज में. इकॉनमी के पेज में आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते होगे, जैसे लेट से कोई फिनटेक कंपनी है, उसके बारे में कुछ ना कुछ हो गया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रैक्टिस के बारे में कुछ हुआ, कि HR प्रैक्टिस के बारे में किसी कंपनी का आ रहा है, सो वो आप हेडिंग उठा सकते हो, जिन यू कैन कोट इट. बाकी बहुत ज़्यादा इतनी रिलेवेंट नहीं होती है कॉमर्स में करंट अफेयर्स की स्पेशली.
बाकी आपका जो वैल्यू एडेड मटेरियल है वहाँ पे थोड़ी चीज़ कवर हो जाती है. सो इट इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ा बहुत आप इकॉनमी वाले पेज में द हिंदू पढ़ते हो या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, वहाँ से एक दो चीज़ कभी कभी आप उठा सकते हो. With any topic from scratch in paper 2, from the topic most hours and cover in descending way. Yes, that is also a good strategy. You can take paper 2, the topic which has been asked in the previous year question, और most important topic पर आपको पता कैसे चलेगा. और दूसरी बात यह है, अगर आप हैफाजार्डली ऐसे टॉपिक उठाओगे तो आई थिंक यू विल बी, मतलब कहीं खो जाओगे तुम उसमें. कभी HRM के आपने कभी HRM नहीं पढ़ा या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस नहीं पढ़ा, सो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका उठाओगे तो यू विल बी हियर एंड देयर. व्हाट आई विल सजेस्ट, टेक ए सब्जेक्ट आउट ऑफ दैट पेपर. लाइक से HRM उठाओ, उसको शुरू से पढ़ लो, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी उठाओ, उसको शुरू से पढ़ो. टॉपिक वाइज उसको मत सेग्रीगेट करो, आप पूरा पेपर उठाओ. According to you, according to you, which portion of the syllabus is scoring, which has more weightage? Okay, so yeah, especially in paper 1, देखो पेपर 1 में इफ़ यू हैव लुक द PYQs, तो FM हो गया, इसका काफ़ी वेटेज रहता है, क्योंकि पेपर 1 में पार्ट ए और पार्ट बी हैं, तो FM जो है आपका पार्ट बी में मेजॉरिटी चीज़ डोमिनेट करता है पेपर 1 में. और जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट हो गया, टैक्स हो गया, कॉस्ट हो गया, इनका लगभग इक्वल वेटेज है. दूसरी चीज़, तो इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड आई वुड से कि इसको बहुत अच्छे से कवर कर लो FM को. इट शुड मेक द बेस ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1. देन पेपर 2 में पार्ट ए है और एक पार्ट बी है. पार्ट ए में OT-OB लगभग बराबर वेटेज कैरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू टेक इन, OT या फिर OB. पेपर 2 में पार्ट बी में आपका HRM की हमेशा ज़्यादा वेटेज होती है. So I would say HRM and FM are the most important thing in the paper 1 that, and in the paper 2 HRM is very important. IR की भी weightage होती है but not in comparison to the HRM. So HRM has more weightage. एक और चीज़, एक और डाउट है कि what are the common mistake which is committed by lot of aspirants. ये common mistake क्या क्या करते हो? देखो सबसे पहली बात तो आप बहुत बड़ा ऑप्शनल है तो उसको साइलोज में पढ़ते हो, पूरा ऑप्शनल ढंग से नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ ली, उसको रिवाइज नहीं कर पाए. दूसरी मिस्टेक. तीसरी मिस्टेक मेरे हिसाब से क्या लगती है ऑप्शनल में, आप प्रैक्टिस नहीं करते. लैक ऑफ प्रैक्टिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के मार्क्स कम क्यों आते हैं? इधर द लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ रिवीजन. या तो आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करे, प्रैक्टिस किसकी, न्यूमेरिकल की नहीं करी आपने, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस नहीं करी, आप सीधा जाके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन लिख कर आ रहे हो, तो फिर आपके मार्क्स कैसे आएंगे? क्योंकि यू आर नॉट एबल टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ. दूसरी चीज़ है आप रिवीजन नहीं कर रहे. रिवीजन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने इतने सारे सोर्सेज से चीज़ें पढ़ ली हैं, आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाए. अगर कंसोलिडेशन नहीं हुआ ऑप्शनल में, और वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉमर्स ऑप्शनल, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अक्रॉस ऑल द ऑप्शनल्स. अगर वो नहीं हुआ कंसोलिडेट, देन आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिवाइज नहीं कर पाए तो आप एग्जाम हॉल में रिकॉल नहीं कर पाओगे वो चीज़. फिर आप वही एब्रप्ट पॉइंट लिख कर आओगे एंड यू विल बी गेटिंग बिलो एवरेज मार्क्स. This is all about the 2024 session. I hope I am able to communicate with you and discuss all the issues with regarding to the commerce optional. And for especially for 2023 people, since you have very less time, so I will be taking separate session for you people in आज कल में, जिससे कि आपकी help हो जाए. Don't watch this because it is a very comprehensive session and you people have very less time. You just have 80-90 days to prepare for means. Fine. And for more details, you can talk to Rahul sir. You can contact to Diadem IAS. They are going to provide you more information with regarding to optional. One more thing, I have also able to see कि Diadem IAS के PYQs भी हैं, जो unsolved भी हैं और solved भी हैं. So they are really very helpful. The reason being, क्वेश्चन ईयर वाइज नहीं है, सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, और सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज हैं. तो लेट्स से यू प्रिपेयर्ड ए टॉपिक ऑफ FM में, कोई भी आपने लेट्स से आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा,
सो आप कॉस्ट एंड कैपिटल के PYQs देख सकते हैं उसमें और उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू गो टू ईयर वाइज बेसिस, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इट एनीवे. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. फाइन. या. Should we go with theory for cost, final accounts, corporate accounts and auditing except financial management? See, you can go for theory for all the subject. देखो, you cannot trade off theory और numericals. करनी तो दोनों चीज़ें हैं, but special prioritize कुछ और कर सकते हैं in the exam. FM की भी थ्योरी पढ़नी है और उसकी भी थ्योरी पढ़नी है और उनकी वो भी पढ़नी है. रीज़न, जो आपके 10 मार्कर्स आते हैं क्वेश्चन 1 और 5, उसमें तो सबके आएंगे. कॉस्ट का भी आएगा, टैक्स का भी आएगा, फाइनल अकाउंट्स का भी आएगा. तब कैसे मैनेज करोगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ पोर्शन छोड़ के आ जाओ एग्जाम में. इसलिए कवरेज सारी करनी है. प्रायोरिटाइज का खेल आपका थोड़ा सा बदल जाता है. ओके, थैंक यू, बाय. Thank you, Shivang, for patiently answering all the queries. And I know the queries which people have are, very, very diverse. And the answer that you have given is, whatever answer you considered best, you have given the answer. And definitely, every student has a different background. So, whatever strategy has been discussed, you can follow this strategy. And also there are some background issues, like some people are very good in numerical, so then you can focus bit more on numerical. If you are good at theory, then you can focus bit more on theory, right? And yes, people are facing two problems which I found. One is the current affairs. Sir, should we follow the current affairs in the commerce optional? The answer is no, you don't need to follow any current affairs, right? Current affairs के लिए आपको डेडिकेटेडली काम करने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट यू नीड टू कवर द सिलेबस, राइट? सबसे पहले आप सिलेबस कवर कीजिए. एंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, यू व्हाट एवर न्यूज़पेपर यू आर रीडिंग, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जस्ट कीप नोटिसिंग इफ यू कैन कोरिलेट समथिंग विद द syllabus part. That is enough, okay? And definitely current affairs, apart from this, whatever newspaper we follow in the mains preparation time, we don't need to follow separately, only that is sufficient. And plus we will give you some compilation before the exam, right? We will give you some compilation of the current affairs before the exam, that is sufficient. And basically current affairs as such is not purely that they will ask you some topic from the recent event. No, that kind of current affairs is not what we are talking about. Here the current affair is basically the latest topics which might have been in news maybe last 2-3 years. For example, last year this was moonlighting. So that is the topic which you need to prepare. It is not like it's a one-time event. It has been in news for maybe 6 months, 1 year, 2 years for long. Okay. So these are the issues, the current issues that you need to focus, and that we will provide you. And apart from that, I keep posting on Telegram channel. I keep posting the latest events, some small bites of current affairs. I keep posting. Okay. The most important point is that you need to link it with the syllabus part. Link with the syllabus part, okay? So that is there, and we will have more such sessions. If you have any further queries, we will be happy to answer your queries. And for 2023 people, we will have one more session. You can attend that session. And those people who are not on the Telegram, you can join the Telegram channel so that you remain connected with us. And those people who are looking for joining some of the programs. So for the commerce optional, we have all kinds of programs. I'll just take 2 minutes. One thing is, if you are going for the classroom, then we have the classroom program. It is a combination of everything. But if you want to go for self-study, then we have the study material, which is enriched, updated, and we can say one-stop solution. Then we have a year-long mentorship and
daily answer writing, and test series program. Right? And thirdly, we also have the previous year questions, solutions available. Okay, these have been just released now. And in the classroom, you get everything which is available here, right? And plus, you get the classroom discussion definitely, which can help you in discipline and in maintaining the balance in all the subject, right? We will provide you some more value additions in the class also. And also, if wherever you have some weakness, you make your weak areas strong. Okay, you make optional strong in the classroom. Okay, so that's up to you. Whichever model you want to follow, whichever model you are comfortable with, follow that model. That is very well, no problem, right? You can connect with us on this phone number regarding further inquiry. The classroom program we are starting next week, and self-study programs, they are available on demand, right? And further, you have any queries, please call on this number. You can contact us. And for 2023, we will have one more session. Thank you very much, and God bless you. Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel, and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.